سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پیچھے تک آواز آ رہی ہے سب کا؟ حجاج کرام، ہمارا قافلہ انشاءاللہ غزوہ بدر کی طرف روانہ ہے۔ غزوہ اسلام کا ایسا جنگ یا مارکہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے غزوات ہوئے جن میں 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ سب سے جو پہلی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ بدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی، جگہ کا نام بدر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں غزوہ بدر۔ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی ہے اسے غزوہ احد کہتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے دامن میں ہوئی تھی۔ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے ساتھ ہی یہ جنگ لڑی گئی تھی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں غزوہ احد۔ احد کا جو پہاڑ ہے، شان والا پہاڑ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ پہلے بلڈنگیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو دروازہ ہے وہ احد کی طرف کھلتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد کے دامن میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی، غزوہ احد۔ اس جنگ میں کفار کا 3000 کا لشکر آیا تھا۔ یہ بدر کا بدلہ تھی۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ 3000 کا لشکر تیار کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں یہاں 3000 کا لشکر آیا۔ یہاں پہ مدینہ پاک کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ مشورے کیے گئے جنگ کیسے لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچوں کو ترتیب دیا اور 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا جو کہ ابھی جبل رومات کے نام سے مشہور ہے۔ جبل رومات تیر اندازی والی پہاڑی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو کھڑا کیا، فرمایا مسلمان جنگ جیتے یا ہارے پہاڑی کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہو گئی، ابو سفیان کا قافلہ آیا، مسلمانوں نے اچھی تیر اندازی کی، کفار ڈر کر بھاگنے لگے۔ مسلمان سمجھے جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ ہم جیت چکے ہیں، یہ سمجھ کے انہوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا اور جنگی سامان کو سمیٹنے لگے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا، ایک سائڈ کو چھوڑ دیا، تو پہاڑی پہ صرف 11 افراد رہ گئے تھے، باقیوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا۔ باقی لشکر سامنے سے آیا اور 300 آدمیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے پہاڑی پہ قبضہ کیا۔ مسلمان درمیان میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا۔ وہاں پہ آپ گئے ہوں گے، 70 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو وہاں آپ نے سلام پیش کیا ہوگا۔ جو نہیں گئے ہیں تو وہاں پہ لازمی جانا ہے۔ مدینہ کی یہ 2 اہم زیارت ہیں جہاں آپ نے لازمی جانا ہے، ایک شہداء اور دوسرا جو ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء جو ہے اسلام کی
पहली मस्जिद है। अभी आप उल्टे हाथ पे ज़ियारत करें, आपको मस्जिद नजर आएगी। इसे कहते हैं तुर्की मस्जिद। ये तुर्कियों के दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। 150 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए। तुर्कियों की ये दो चीजें ही बाकी हैं कि ये तुर्की मस्जिद है और ये जो सीधे हाथ पे तुर्की स्टेशन है, ये तुर्कियों के दौर के बने हुए हैं। हुज्जाज किराम, ओहद में जो नुकसान उठाना पड़ा वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि पहाड़ी को नहीं छोड़ना, लेकिन मुसलमानों ने पहाड़ी को छोड़ दिया। बाद में अल्लाह पाक ने उनको माफ कर दिया, तो उन्होंने पहाड़ी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जंग में नुकसान उठाना पड़ा। आज हम पता नहीं क्या क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम छोड़ते हैं और आम चीज समझते हैं। तो इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि जंग में फतह हो चुकी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं माना गया, उसको भूल गए और पहाड़ी को गलत फहमी में उन्होंने पहाड़ी को छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि 70 सहाबा इकराम हमारे शहीद हुए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तीसरी जो जंग अजीम हुई है उसे गज़वा खंदक के नाम से जाना जाता है। उसमें खंदक खोदी गई थी। इस जंग में जो है कुफ्फार का 10,000 का लश्कर आया था। मुसलमानों की जो तादाद थी वो 3,000 थी। मशवरे किए गए जंग कैसे लड़ी जाएगी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे को अहमियत दी गई। उन्होंने मशवरा दिया कि मदीना के अंदर दाखिल होने के जो रास्ते हैं, अगर वहां पर खंदक खोदी जाए तो कुफ्फार को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे को पसंद फरमाया। तमाम सहाबा इकराम को खंदक खोदने पर लगा दिया। 10-10 सहाबा इकराम का गिरोह बनाया गया। हर गिरोह ने 40 हाथ खंदक खोदना थी। खंदक की लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। चौड़ाई इतनी थी कि एक तेज रफ्तार घोड़ा क्रॉस न कर सके। 40 फुट चौड़ाई थी और 40 फुट गहराई थी। तमाम सहाबा इकराम ने खंदक खोदने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से खंदक खोदी। सहाबा इकराम ने पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदी। एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। इस जंग में बड़ी जबरदस्त फतह हासिल हुई थी। कुफ्फार जब आए, उन्होंने ये खंदक खुदा हुआ देखा तो उन्होंने वहीं पे अपने खेमे लगा लिए। 22 दिन वो ठहरे, खंदक क्रॉस नहीं कर सके और फिर वो वापस चले गए। इस तरह बगैर लड़े ही खंदक में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उसे गज़वा खंदक कहते हैं। ये 2 जंगे मदीना पाक के अंदर हुई हैं, गज़वा ओहद और गज़वा खंदक। बदर जो यहाँ से 170 किलोमीटर दूर हुई है और ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। सबसे पहली जंग थी जिसे गज़वा बदर कहते हैं। ये काफिला आ रहा था शाम से कुफ्फार का, अबू सुफियान का 40 आदमियों का काफिला। वो तजारत करने गए थे शाम, तो उनके पास हथियार वगैरह भी थे जो वो खरीद कर लाए थे। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पाक आ गए, यहाँ पे रियासत मदीना कायम हो गई, ये बात मुशरिकीन मक्का से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से किस तरह मिटाया जाए। तो ये 40 आदमियों का काफिला उन्होंने शाम भेजा था। तो इसके अंदर ये भी था कि वो हथियार खरीद कर लाएंगे और वो हथियार जो है मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ताक़ुब किया। इनको रोकने के लिए ये जो 40 आदमी जा रहे थे, 313 सहाबा इकराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे और हर ऊंट पे 3-3 आदमी सवार थे। ये काफिला रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से निकले। अंबिया इकराम गुजरे। तो
कहीं भी अंबिया इकराम आते थे दुनिया में, जब वो अरब का सफर करते थे तो इस रास्ते से गुजरे हैं और उन्होंने बीरे रोहा से पानी पिया है। कुआं है, सदियों पुराना कुआं है, जारी कुआं है और अभी भी उसमें पानी आता है और लोग शिफा के लिए जाते हैं, वो पानी लाते हैं और पीते हैं। अल्लाह पाक ने उसके अंदर शिफा रखी हुई है, तो वो गुर्दों की बीमारी के लिए, पथरी के लिए अल्लाह पाक ने उसमें शिफा रखी है। तो इंशाल्लाह वो पानी पिए और अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देता है। अल्लाह पाक सबकी बीमारियों को दूर फरमाए और जिसने चाहिए, जिसको लेके जाना है, वो वहां से भर भी सकता है। तो वहां पे हम ठहरेंगे वापसी पे। और एक आता है बीरे शिफा कुआं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर एक मरतबा ठहरा था, मक्का से वापस आ रहे थे, यहाँ पे ठहरा था। इस कुएं का पानी कड़वा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाबे मुबारक डाला, पानी मीठा हो गया। तो इसका ये अभी जाती पानी नहीं है, इसका वो जो बोतल वगैरह बेचने वाले बैठे हुए हैं, वो टैंकर वगैरह अंदर डालते हैं, फिर पानी निकालते हैं। तो इस तरह है, लेकिन हम सुन्नत के तौर पे हम वो पानी पिएंगे इंशाल्लाह। तो वहां से हमने पानी पीना है, भरना नहीं है, तो हमारी सुन्नत पूरी हो जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम से पानी पिया है, तो ऐसे हम वहां से पानी पिएंगे और बीरे रोहा से इंशाल्लाह हम पानी भर के लाएंगे। तो ये जो दूसरा रास्ता है तरीके हिजरा, ये दो रास्ते हैं मक्का के। तरीके हिजरा वो रास्ता है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा मक्का से मदीना हिजरत की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो हिजरत की थी मक्का से मदीना अल्लाह के हुक्म से, तो वो तरीके हिजरा से की थी। इसलिए ये दो रास्ते हैं मक्का के, एक तरीके अंबिया है और एक तरीके हिजरा है। अभी हम जिस रास्ते पे ऐसे तरीके अंबिया कहते हैं, ये पुराना रास्ता है। पहले हाजी लोग जो उम्रा करने जाते थे वो इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन अभी ये उम्रे के लिए बंद कर दिया रास्ता, दूसरा रोड नया निकाल दिया तरीके हिजरा, वहां से अब लोग जाते हैं उम्रे के लिए। तो हाजी साहब अभी आप अपना किराया जमा करा के आप आराम करें, पूरा 2 घंटे का सफर है, आराम से इंशाल्लाह। फिर वहां जाके हम एक पेट्रोल पंप पे 5 मिनट पहले ठहरेंगे, वहां आप थोड़ा फ्रेश हो जाना, वजू वगैरह करना, जिसमें हमाम हो के आना, हमाम हो आना। उसके बाद 5 मिनट का आगे सफर होगा, वहां पे इंशाल्लाह बदल जाएंगे, इंशाल्लाह खैरियत से लेकर जाए। तो अभी आप किराया निकाल के बैठ इंशाल्लाह जमा कर लेते हैं, उसके बाद